السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی یا ناول سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیر کامل عمیرہ احمد قسط نمبر 26۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزر رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے اثار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر چلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چھیڑتے ہوئے اس بالکونی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں منڈیر کے پاس ایک سٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا جس میں اس نے اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لیے یک تک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر ثابت علی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آنے لگی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی۔ میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں سے تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم، بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ تلاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو گفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھاتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتے، یا پھر کاش میں آج کراچی ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فون کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر ثابت علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا، یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ماما میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک تہہ شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سرار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا، اسے یاد نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اسے اس کاغذ میں امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام کاغذ پر تیری، ان چند جملوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسے طے کر کے اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا کپ سرد ہو چکا تھا۔ سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی کپ کو ایک گھونٹ میں ہی اندر ڈھیل لیا۔ ڈاکٹر ثابت علی ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر ثابت علی واپس آ گئے تھے۔ وہ راتوں کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر وہ دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال حوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آج آپ رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو رہی،
پھر ڈاکٹر سبیت علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے ہاں پہنچا، اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبیت علی کا ملازم اسے اجتماعی والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبیت علی نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے بلغیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آیا کرتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صفحے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہیں اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظر جھکا لی۔ اس کی زندگی میں امام ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملے سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امام ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبیت علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں؟ تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا۔ اس نے دل میں کہا، کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبیت علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبیت علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کی خاموش ہونے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالحہ مرد ملا ہے۔ ان کی بات سالار کو ایک جابق کی طرح لگی۔ صالحہ؟ میں صالحہ مرد نہیں ہوں ڈاکٹر سبیت علی، میں تو اسفل الصالحین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مراحل پر زمانے جہالیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اس زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا نہ تو توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالحہ ہوتے ہیں، کچھ صالحہ بنتے ہیں۔ صالحہ ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالحہ بننا 2 دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی صحیح کہتا ہوں کہ آپ صالحہ ہیں کیونکہ آپ صالحہ بنے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر امام ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر سبیت علی کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر سبیت علی خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دوران اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبیت علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر سبیت علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبیت علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل مرزا سعید اماں کے گھر چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبیت علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کا کوئی اثار نہیں تھا۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا، تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گی؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا۔
तो फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा कि मुझे इससे क्या बात करनी है। इससे पहले कि फुरकान कुछ कहता फ़ोन बंद हो गया था। तुम इससे इमामा के बारे में बात करना चाहते हो? फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सलार से पूछा। नहीं, सिर्फ मामा के बारे में नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। और गॉड से एक सलार, घरे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो। फुरकान ने नाराज़गी से कहा। इसको मेरी तरजीहात और मकासद का पता होना चाहिए। अब इसे सारी ज़िंदगी गुजारनी है मेरे साथ। सलार ने इसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर कहा। पता चल जाएगा, इसे समझदार लड़की है वो। अगर कुछ बताना ही है तो घर ला कर बताना, वहाँ पेंडोला बॉक्स खोल कर मत बैठना। घर ला कर बताने का क्या फ़ायदा जब इसके पास वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। मैं चाहता हूँ वो मेरी बातों को सुने, समझे और सोचे और फिर कोई फ़ैसला करे। अब कोई फ़ैसला नहीं कर सकती वो। तुम्हारा और इसका निकाह हो चुका है, रुखसती तो नहीं हुई। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? अगर इसको मेरी बात पर एतराज़ हुआ तो वो इस रिश्ते के बारे में नज़रसानी कर सकती है, सलार ने संजीदगी से कहा। फुरकान ने छती हुई नज़रों से इसे देखा। और इस नज़रसानी के लिए तुम किस तरह के हक़ाइक़ और दलाइल पेश करने वाले हो इसके सामने? मैं इसे सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ जिसका जानना इसके लिए ज़रूरी है, सलार ने तो टोक अंदाज में कहा। वो डॉक्टर सबीत अली के रिश्तेदार है। मैं इस हवाले से इसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। डॉक्टर सबीत अली ने मुझसे नहीं कहा होता तो ये रिश्ता कायम भी ना होता, लेकिन फुरकान ने इसकी बात काट दी। ठीक है, तुमको इससे जो कहना है कह लेना, लेकिन मामा की जिक्र को ज़रा कम ही रखना, क्योंकि अगर किसी बात से हर्ट हुई तो वो यही बात होगी। बाकी चीज़ों की परवाह वो शायद ना करे। आफ्टर ऑल दूसरी बीवी होना क्या कहलाना आसान नहीं होता। फुरकान ने इसे समझाने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ वो ये बात महसूस करे, सोचे इसके बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम कहते हो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। फुरकान ने एक बार फिर इसकी बात काटी। ख़त्म करो इस मौजू को सलार। तुमको इससे जो कुछ कहना है, इसको समझाना है, जाकर कह लेना। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, सलार ने कहा। मैं सईदा अम्मा से कह दूँगा, वो तुम्हें अकेले में इससे बात करा देंगी। फुरकान ने इसकी बात पर सर हिलाते हुए कहा। वो आधे घंटे में सईदा अम्मा के यहाँ पहुँच गए। दरवाज़ा सईदा अम्मा ने ही खोला था और सलार और फुरकान को देखकर वो जैसे खुशी से बेहाल हो गई थी। वो इन दोनों को बैठक नमा कमरे में ले गई। सईदा अम्मा सलार आमना से कुछ तन्हाई में बातें करना चाहता है। फुरकान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सईदा अम्मा कुछ उलझी। कैसी बातें? वो अब सलार की तरफ देख रही थी, जो खुद भी बैठने के बजाय फुरकान के साथ ही खड़ा था। हैं चंद बातें जो वो इनसे करना चाहता है, मगर परेशानी वाली कोई बात। फुरकान ने इन्हें तसल्ली दी। सईदा अम्मा एक बार फिर सलार को देखने लगी। इसने नज़र चुरा ली। अच्छा, फिर तुम मेरे साथ आ जाओ बेटा, आमना अंदर है, इधर आकर इससे मिल लो, सईदा अम्मा कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। सलार ने एक नज़र फुरकान को देखा, फिर वो खुद भी सईदा अम्मा के पीछे चला गया। बैठक बैरूनी दरवाजे की बाएं जानिब थी। दाएं जानिब ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। बैरूनी दरवाजे से कुछ आगे बिल्कुल सामने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लकड़ी का एक और पुरानी तर्ज का बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जो इस वक्त खुला हुआ था, और वहाँ सुर्ख ईंटों का बड़ा वसीया सहन नज़र आ रहा था। सईदा अम्मा का रुख इन्हीं सीढ़ियों की तरफ था। सलार इनसे कुछ फासले पर था। सईदा अम्मा अब सीढ़ियाँ चढ़ रही थीं। वो जब सीढ़ियाँ चढ़कर सहन में दाखिल हो गई तो सलार भी कुछ झिझकता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वसीया सुर्ख ईंटों के सहन के दोनों तरफ दीवारों के साथ किनारियाँ बनी हुई थीं, जिनमें लगे हुए सब्ज़ पौधे और बेलें सुर्ख ईंटों से बनी हुई दीवारों के बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। सहन के एक हिस्से में धूप थी और दिन के इस हिस्से में भी वो धूप बेहद तेज़ थी। धूप ने सुर्ख रंग को कुछ और नुमाया कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर सलार ने सहन में कदम रख दिया और वो ठटक कर रुक गया। सहन के धूप वाले हिस्से में रखी चारपाई के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो शायद अभी चारपाई से उतरी थी। इसकी पुश्त सलार की तरफ थी। वो सफ़ेद कुर्ते और स्याह शलवार में मलबूस थी और नहा कर निकली थी। इसके कमरे से कुछ ऊपर इसके स्याह गीले बालों लटों की सूरत में इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। इसका सफ़ेद दुपट्टा चारपाई पर पड़ा हुआ था। वो अपने कुर्ते की आस्तीनों को कहनियों तक फोल्ड करते हुए सलार की तरफ मुड़ी। सलार सांस नहीं ले सका। इसने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या फिर इसे इस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगा था। वो यकीनन आमना थी। इसके घर में आमना के अलावा और कौन हो सकता था? वो आगे नहीं बढ़ सका। वो इससे नज़रें नहीं हटा सका। किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया था। धड़कनें रुक गई थीं या रवां वो जान नहीं सका। इसके और आमना के दरमियान बहुत फासला था। आस्तीन मोड़ते हुए आमना की नज़र सईदा अम्मा पर पड़ी। सलार बेटा आया है। सईदा अम्मा बहुत आगे बढ़ गई थी। आमना ने गर्दन को तिरछा करते हुए सहन के दरवाजे की तरफ देखा। सलार ने इसे भी ठटकते हुए देखा। फिर वो मुड़ी। इसकी पुश्त एक बार फिर सलार की तरफ थी।
सलार ने इसे झुकते और चारपाई से दुपट्टा उठाते देखा। दुपट्टे को सीने पर फैलाए हुए इसने इसके एक पल्लू के साथ अपने सर और पुश्त को भी ढांप लिया था। सलार अब भी इसकी पुश्त के बिखरे बाल नहीं देख सकता था, मगर इसे आमना के इत्मीनान ने हैरान किया था। वहाँ कोई घबराहट, कोई जल्दी, कोई हैरानी नहीं थी। सईदा अम्मा ने मुड़कर सलार को देखा, फिर इसे दरवाजे में ही खड़े देखकर उन्होंने कहा, अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। आमना ने दुपट्टा ओढ़ने के बाद मुड़कर इसे एक बार फिर देखा। वो अब भी इसे ही देख रहा था, पलकें झपकाए बगैर दम बखुद बेहस वो हरकत। आमना के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो अब आगे गया था। ये आमना है, मेरी बेटी। सईदा अम्मा ने इसके करीब आने पर तारुफ कराया। अस्सलाम वालेकुम, सलार ने आमना को कहते सुना। वो कुछ बोल नहीं सका। वो इससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। इसे देखना मुश्किल हो गया था। वो नर्वस हो रहा था। आमना ने इसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। सलार तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, सईदा अम्मा ने आमना को बताया। आमना ने एक बार फिर सलार को देखा। दोनों की नज़रें मेल, दोनों ने बैक वक्त नज़र चुरा ली। आमना ने सईदा अम्मा को देखा और सलार ने आमना की कलाई तक मेहंदी की नक्श व निगार से भरे हाथों को। यकदम इसे लगा कि वो इस लड़की से कुछ नहीं कह सकता। सलार बेटा, अंदर कमरे में चलते हैं, वहाँ तुम इत्मीनान से आमना से बात कर लेना। सईदा अम्मा ने इस बार सलार को मुखातिब किया। सईदा अम्मा कहते हुए अंदर बरामदे की तरफ बढ़ी। सलार ने आमना को सर झुकाए इनकी पैरवी करते देखा। वो वहीं खड़ा इसे अंदर जाते देखता रहा। सईदा अम्मा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आमना ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते मुड़ते इसे देखा। सलार ने बड़क रफ्तारी से नज़र झुका ली। आमना ने मुड़कर इसे देखा, फिर शायद वो हैरान हुई। सलार अंदर क्यों नहीं आ रहा था? सलार ने इसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए कदम आगे बढ़ा दिए। आमना कुछ मुतमईन होकर मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। सलार जब कमरे में दाखिल हुआ तो सईदा अम्मा पहले ही एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आमना लाइट ऑन कर रही थी। सलार को धूप से अंदर आकर खनकी का एहसास हुआ। बैठो बेटा, सईदा अम्मा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए इससे कहा। सलार कुर्सी पर बैठ गया। आमना लाइट ऑन करने के बाद इससे कुछ फासले पर इनके बिलमुकामिल एक लाउंज में बैठ गई। सलार मुंतज़िर था कि सईदा अम्मा चंद लम्हों में वहाँ से उठकर चली जाएंगी। फुरकान ने वाज़ह तौर पर इन्हें बताया था कि वो इससे तन्हाई में बातें करना चाहता है, मगर चंद लम्हों के बाद सलार को अंदाज़ा हो गया कि इसका ये इंतज़ार बेकार था। वो शायद ये भूल गई थी कि सलार तन्हाई में आमना से मिलना चाहता था, या फिर इनका ये ख्याल था कि वो तन्हाई सिर्फ फुरकान के अदम मौजूदगी के लिए थी। सलार ने इन्हें इसमें शामिल नहीं किया होगा, या फिर वो अभी सलार को इतना काबिल एतबार नहीं समझती थी कि अपनी बेटी के साथ इसे अकेला छोड़ देती। सलार को आखिरी अंदाज़ा सही लगा। वो इसे जो कुछ और जितना कुछ कहना चाहता था सईदा अम्मा के सामने नहीं कह सकता था। वो कह ही नहीं सकता था। इसने अपने ज़हन को खंगालने की कोशिश की। इसे कुछ तो कहना ही था। वो कुछ नहीं ढूंढ सका। इसका ज़हन खाली था। नीम तारीख खनक कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से फंसाए फर्श पर नज़र जमाए हुए था। आमना ने कमरे में कोई फैंसी लाइट रोशनी की थी। ऊंची दीवारों वाले फर्नीचर से भरा हुआ वो वसीया और अरीज़ कमरा शायद सेटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसमें बहुत ज़्यादा दरवाजे थे और तमाम दरवाजे बंद थे। कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की बरामदे की तरफ खुलती थी और इसके आगे पर्दे थे। फर्श को भारी भरकम महरून नक्शो निगार की कालीन से ढका गया था और फैंसी लाइट कमरे को पूरी तरह रोशन करने में नाकाम हो रही थी। कम अज़ कम कमरे में सलार को तारीकी महसूस हो रही थी। शायद ही इसके एहसासात ही थे, या फिर मुझे अपने ऑपरेशन से आज ज़रूर मिलना चाहिए। करीब के साथ साथ शायद मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर हो गई है, सलार ने मायूसी से सोचा। सेंटर टेबल की दूसरी तरफ बैठी आमना को वो देख नहीं पा रहा था। इसने एक बार फिर नज़रें कालीन पर जमा दी। फिर इसने यकदम आमना को उठते देखा। वो दीवार के पास जाकर कुछ और लाइट्स ऑन कर रही थी। कमरा ट्यूब लाइट की रोशनी में जगमगा उठा। फैंसी लाइट बंद हो गई थी। सलार हैरान हुआ, आमना ने पहले ट्यूब लाइट ऑन क्यों नहीं की थी। फिर अचानक इसे एहसास हुआ वो भी नर्वस थी। आमना दोबारा फिर इसके सामने काउच पर आकर बैठी। वो इससे कुछ फासले पर सईदा अम्मा के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। सलार ने एक बार इसे देखने की कोशिश नहीं की। वो इस तरह कालीन को घूरता रहा। सईदा अम्मा का सब्र बिल आखिर जवाब दे गया। कुछ देर बाद उन्होंने खंकार कर सलार को मतवज्जा किया। करो बेटा वो बातें जो तुमने आमना से तन्हाई में करनी थी। उन्होंने सलार को बड़े प्यार से याद दिलाया। इतनी देर से चुपचाप बैठे हो, मेरा दिल तो हौल रहा है। सलार ने गहरा सांस लिया, फिर सईदा अम्मा और आमना को बारी बारी देखा।
कुछ नहीं, मैं इन्हें बस देखना चाहता था, इसने अपने लहजे को हद्दल-इम्कान हमवार रखते हुए कहा। सईदा अम्मा के चेहरे पर बशाशत आ गई। तो इतनी सी बात थी और फुरकान ने मुझे डरा ही दिया। हाँ हाँ ज़रूर, देखो क्यों नहीं, ये बीवी है तुम्हारी। वो उठकर खड़ा हो गया। आप इनसे कह दें कि सामान पैक कर लें, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ सईदा अम्मा से बोला। आमना ने चौंक कर इसे देखा। सईदा अम्मा भी हैरानी से इसे देख रही थी। मगर बेटा, तुम तो सिर्फ कुछ बातें करना चाहते थे, इससे फिर रुखसती? मेरा मतलब है, मैं चाहती थी बाकायदा रुखसत करूं। और सलार ने नरमी से सईदा अम्मा की बात काटी। आप ये समझ लें कि मैं बाकायदा रुखसत करवाने के लिए ही आया हूँ। सईदा अम्मा कुछ देर इसका चेहरा देखती रहीं, फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही, मगर इफ्तार के लिए रुको। चंद घंटे ही बाकी हैं, खाना तो खा कर जाओ। नहीं, मुझे और फुरकान को कुछ काम है, मैं इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही लेकर आया था। ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, वो खड़े खड़े कह रहा था। लेकिन अम्मा, मुझे तो सामान पैक करने में बहुत देर लगेगी। आमना ने वहीं कुर्सी पर बैठते हुए पहली बार सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सलार ने मुड़कर इसे देखे बगैर सईदा अम्मा से कहा, सईदा अम्मा, आप इनसे कहें ये आराम से पैकिंग कर लें, मैं बाहर इंतज़ार करूँगा जितनी देर ये चाहें। वो अब कमरे से निकल गया था। फुरकान ने हैरानी से सलार को देखा। वो बैठक में दाखिल हो रहा था। इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं तो सोच रहा था तुम खासी देर के बाद वापस आओगे। सलार जवाब में कुछ कहने के बजाय बैठ गया। फुरकान ने इसके चेहरे को गौर से देखा। खैरियत है? हाँ, आमना से मुलाकात हुई। हाँ, फिर क्या? चलें? नहीं। क्यों? मैं आमना को साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? फुरकान भौंच का रह गया। तुम तो इससे बात करने के लिए आए थे। सलार जवाब देने के बजाय अजीब सी नज़रों से इसे देखने लगा। यकदम रुखसती का क्यों सोच लिया? बस सोच लिया। इस बार फुरकान ने इसे अभी हुई नज़रों से देखा। 2 घंटे के बाद आमना जब फुरकान और सलार के साथ सलार की फ्लैट पर पहुंची, तब अफ्तारी में ज़्यादा वक्त नहीं था। सलार ने अफ्तारी का सामान रास्ते से ले लिया था। फुरकान इन दोनों को अफ्तारी के लिए अपने फ्लैट पर ले जाना चाहता था, मगर सलार इस पर रजामंद नहीं हुआ। फुरकान ने अपनी बीवी को भी सलार की फ्लैट पर बुलवाया था। अफ्तारी के लिए टेबल फुरकान की बीवी ने ही तैयार किया था। आमना ने मदद करने की कोशिश की थी, जैसे फुरकान और इसकी बीवी ने रद्द कर दिया। सलार ने मुदाखलत नहीं की थी। वो मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया था। लाउंज पर बैठे खिड़कियों के शीशे के पार आमना ने इसे बालकनी में टहलते मोबाइल पर किसी से बात करते देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रही थी। इसने सईदा अम्मा के घर से अपने फ्लैट तक एक बार भी इसको मुखातिब नहीं किया था। ये सिर्फ फुरकान था जो वक्तन फ़ौक्तन इसे मुखातिब कर रहा था, और अब भी यही हो रहा था। सलार ने वो खामोशी अफ्तार की मेज़ पर भी नहीं तोड़ी। फुरकान और उसकी बीवी ही आमना को मुख्तलिफ चीज़ें सर्व करते रहे। आमना ने इसकी खामोशी और सर्द मौरी को महसूस किया था। अफ्तार के बाद वो दोनों फुरकान के साथ मगरिब की नमाज के लिए निकल आया था। फुरकान को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हॉस्पिटल जाना था। मस्जिद से निकल कर फुरकान के साथ कार पार्किंग की तरफ आते फुरकान ने इससे कहा, तुम बहुत ज़्यादा खामोश हो। सलार ने एक नज़र इसे देखा, मगर कुछ कहे बगैर चलता रहा। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए? वो मुसलसल की खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सलार ने सर उठाकर आसमान को देखा। मगरिब के वक्त ही धुंध नमूदार होने लगी थी। एक गहरा सांस लेकर इसने फुरकान को देखा। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। चंद लम्हों साथ चलने के बाद फुरकान ने इसे बड़बड़ाते सुना, मैं आज कुछ भी कहने के काबिल नहीं हूँ। फुरकान को बेख्तियार इस पर तरस आया। साथ चलते चलते इसने सलार का कंधा थपथपाया। तुम्हारे एहसास समझ सकता हूँ, मगर ज़िंदगी में ये सब होता रहता है। तो इमामा के लिए जो कुछ कर सकते थे तुमने किया, जितना इंतज़ार कर सकते थे तुमने किया। 8-9 साल कम नहीं होते। अब तुम्हारी किस्मत में अगर यही लड़की है तो हम या तुम क्या कर सकते हो? सलार ने बेतसीर नज़रों से इसे देखा। इसे घर में आना इमामा का मुकद्दर नहीं था, आमना का मुकद्दर था। सो वो आ गई। इससे निकाह हुए 7 दिन हुए हैं और 8वें दिन वो यहाँ है। मामा के साथ निकाह को 9 साल होने वाले हैं। वो आज तक तुम्हारे पास नहीं आ सकी। क्या तुम ये बात नहीं समझ सकते कि इमामा तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है? वो पूरी दिल जमा से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। बाज़ ख्वाहिशात अल्लाह पूरी कर देता है, बाज़ नहीं करता। हो सकता है इमामा के ना मिलने में तुम्हारे लिए बेहतरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें आमना के लिए ही रखा हो सकता है आज से चंद साल बाद तुम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थको। वो दोनों अब पार्किंग के पास पहुंच चुके थे। फुरकान की गाड़ी शुरू में ही खड़ी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, जिसने जो चाहा हो पा लिया हो। फिर शिकवा किस बात का? आमना के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। फुरकान ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, मगर बैठने से पहले इसने सलार को दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बारी बारी इसके दोनों गालों को नरमी से चूमा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने एक नेकी की है, और इस नेकी का अजर अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो अगली दुनिया में मिल जाएगा।
वो अब सलार के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए हुए कह रहा था। सलार सर को हल्का सा खम करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया। फुरकान ने एक गहरा सांस लिया। आज के दिन ये पहली मुस्कुराहट थी जो इसने सलार के चेहरे पर देखी थी। इसने खुद भी मुस्कुराते हुए सलार की पुश्त थपथपाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सलार ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फुरकान इंगिशन में चाबी लगा रहा था जब इसने सलार को खिड़की का शीशा उंगली से बजाते देखा। फुरकान ने शीशा नीचे गिरा दिया। तुम कह रहे थे कि तुमने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की हो इसे मिल गई हो। सलार खिड़की पर झुके पुरसकून आवाज़ में इससे कह रहा था। फुरकान ने उलझी हुई नज़रों से इसे देखा। वो बेहद पुरसकून और मुतमईन नज़र आ रहा था। फिर तुम मुझे देखो, क्योंकि वो इंसान मैं हूँ जिसने आज तक जो भी चाहा इसे वो मिल गया। फुरकान को लगा इसका ज़हन गम की वजह से मुतासिर हो रहा था। जिसे तुम मेरी ज़िंदगी कह रहे हो वो दरअसल मेरा अजर है जो मुझे ज़मीन पर ही दे दिया गया है। मुझे आखिरत के इंतज़ार में नहीं रखा गया और मेरा मुकद्दर आज भी वही है जो 9 साल पहले था। वो ठहर ठहर कर गहरी आवाज़ में कह रहा था। मुझे वही औरत दी गई है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। इमामा हाशिम इस वक्त मेरे घर पे है। खुदा हाफिज़। फुरकान दम्बा खुद दूर जाते हुए इसकी पुश्त देखता रहा। वो क्या कह गया था इसकी समझ में नहीं आया। शायद मैं ठीक से इसकी बात को नहीं सुन पाया, या फिर शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया है, या फिर शायद इसने सब्र कर लिया है। इमामा हाशिम। सलार अब बहुत दूर नज़र आ रहा था। अगली केस देखने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।